discuss about the paintings of Rajasthani miniature school. So our first painting is Maru Ragini. So students, you can see image on your screen. This is the painting Maru Ragini. First, the title. The title of the painting is Maru Ragini. Name of the painter. This painting was painted by famous artist Sahibdin and it belonged to the sub-school of Mewad. Next is medium and technique. So students, this will remain the same until our 4 chapters to be completed, which are from miniature schools. So medium and technique, watercolor in tempera on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Subject matter means what the painting represent or tells anyone in its first look. This is a painting from Ragbala series in which the king and queen have shown riding a camel against the yellow desert background. So students, now we have to discuss about the compositional part, in which in this painting the king with his queen is riding a camel in yellow desert background. You can see a background of yellow color in the back side. Both the king and queen wear highly ornamented dresses. Even the camel decoration is fitting to the occasion. The camel is walking slowly, led by an attendant. The foreground is painted in light washes in green colors. Students, one male escort has shown leading the camel, while two escort means attendants, helpers. Okay, so while two escorts are alongside the camel with sticks in their hands and swords. A hunting dog is running ahead of the two escorts. Now we discuss about the color scheme. In this painting, orange, coffee brown and white colors are used and background is shown in dark blue color. So students, this is our first painting Maru Ragini, and our second painting is Raja Anirudh Singh Hara. You can see an image given on the screen. A person sitting on a galloping horse. Galloping horse means भागने वाला, भागते हुए घोड़ा. ठीक है, galloping means भागते हुए घोड़ा. Okay, the title of the painting is same name, Raja Anirudh Singh Hara. You have to write this. Name of the painter, which person or painter painted this painting. So the name of the painter is Utkal Ram. Sub school, this painting belong to Bundi sub school. Medium technique, watercolor in tempera on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with gum or egg yolk. Subject matter, this is a painting of Bundi miniature, represent the period of Rajput miniature before it was being replaced by Mughal realism. ओके, तो ये पेंटिंग जो है वो कब की है? पहले की है, जब ये बूंदी स्कूल जो था वो मुगल्स में मिक्स नहीं हो चुका था, उससे पहले की है. द पिक्चर शोज प्रिंस अनिरुद्ध सिंह हरा ड्रेस्ड इन मुगल स्टाइल सिटिंग ऑन बैक ऑफ वाइट गलोपिंग हॉर्स. और ये पेंटिंग जो है वो एक राजा की है, ठीक है, युवराज की है, प्रिंस की है, जिनका नाम अनिरुद्ध सिंह हरा है, और वो एक मुगल स्टाइल में खड़े हैं, मुगल स्टाइल में दिखाए गए हैं, और वो किसके ऊपर बैठे हुए हैं? गैलोपिंग हॉर्स के ऊपर. स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन अरेंजमेंट. द पेंटिंग composition is extremely simple and straightforward, in which figures are represented against this solid background of dark blue colors. This painting shows the Raja Anirudh Singh Hara on the back of the galloping horse.
ही इज़ ड्रेस्ड इन टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम, उसने टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और वो घोड़े के ऊपर है, जबकि पीछे की बैकग्राउंड क्या है, ब्लू कलर की है। ठीक है, ओके। अलॉन्ग विद द हेड ड्रेस टर्बन, और सिर के ऊपर क्या पहनी है, टर्बन पहनी हुई है। देयर इज रिफाइंड क्राफ्टमैनशिप इन द ड्राइंग ऑफ द गलोपिंग हॉर्स विद हुप्स अपलिफ्टेड। बिल्कुल सही कहा है इसने। इसने कहा है कि रिफाइन होता है बड़ी बड़ी अदाकारी से, बड़ी मज़े से, अच्छी तरह से, बारीकी से जो गैलोपिंग होता है, भागता हुआ घोड़ा जो उन्होंने बनाया है, रनिंग पोज में जो घोड़ा बनाया है, उसके हूफ्स होते हैं पाँव। ठीक है, हूफ्स घोड़े के जो पाँव हैं उसको बड़ी बेहतरीन अदाकारी से दिखाया गया है, बनाया गया है। द किंग्स ड्रेस इज़ डेकोरेटेड विद ऑरेंज एंड ब्राउन कलर्स। अब पेंटिंग की इमेज तो थोड़ी सी ब्लर है, आपको कलर दिखेंगे, रियल में जो पेंटिंग है वो ऑरेंज और ब्राउन कलर की ड्रेस कोड है किंग का। ही होल्ड्स ए फ्लावर इन हिज राइट हैंड, उसने एक हाथ में अपने फ्लावर पकड़ा हुआ है मुगल स्टाइल में, वाइल कंट्रोलिंग द रीन्स ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, और दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा है, घोड़े की लगाम उसने पकड़ी हुई है। ठीक है, विद हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, दिस स्कैबर्ड एंड स्वॉर्ड हिल्ट और इलाबोरेटरी ऑर्नामेंट, उसकी जितनी भी वो तलवार है या कमान, जो भी कुछ भी उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो पूरी की पूरी डेकोरेट की गई है ऑर्नामेंट के साथ। ठीक है, सजाई गई है। द स्मॉल हेड ऑफ द हॉर्स हैज़ एडिड ए ह्यूजनेस टू द बॉडी ऑफ हॉर्स। अब एक चीज़ इसमें की गई है कि घोड़े की बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका हेड जो है वो छोटा दिखाया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कलर स्कीम। इन दिस पेंटिंग ऑरेंज, कॉफ़ी ब्राउन एंड वाइट कलर्स आर यूज्ड, और बैकग्राउंड जो बनी है वो बनी है, एंड बैकग्राउंड इज शोन dark blue color. So students, this is our second painting, and now we are going to discuss about our third painting, which is Chogan player. The name of the Chogan is a game polo in which players have to be played a game with a ball and sticks. Title Chogan player. Name of the painter Dana. Sub school Jodhpur. Medium and technique will remain the same. Watercolor in tempera technique on handmade paper. Tempera is a technique in which grinding colors are mixed with egg yolk or gum. Subject matter. Okay, in this painting Chogan player or group of polo players are shown. इसमें polo players के group दिखाया गया है। Princess राजकुमारियाँ जो हैं are playing polo with their mates. ठीक है, वो जो गेम किससे खेल रही है, अपनी जो मेट्स होती हैं, उनकी दासियाँ या जो भी उनके साथ खेल रही हैं। दे ऑल आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक विद पोलो स्टिक्स इन देयर। इन सब को आर्टिस्ट ने जो सजा के बनाया है वो किस पे बनाया है, घोड़े के ऊपर बिठा के बनाया है, जिनके हाथ में पोलो स्टिक्स हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन पोर्शन। कंपोजिशन अरेंजमेंट। देयर इज ए पेंटिंग ऑफ group of polo players. In this painting, two princes are riding on horse with their maids. They are charging at each other with long polo sticks. ठीक है, अभी वो क्या कर रही हैं, वो राइडिंग कर रही हैं। इसे पोलो प्लेयर्स दिखाए गए हैं, जबकि दो प्रिंसेस जो हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठी हैं सामने सामने, और बाकी वाली जो हैं वो बैक टू बैक बैठी हुई है। ठीक है, जो लेडी अटेंडेंट्स हैं। अब ये क्या कर रही हैं, सब जो हैं एक दूसरे के ऊपर बॉल जो है वो, ठीक है, आगे पीछे एक दूसरे बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। देयर लेडी कंपेनियंस और आल्सो ऑन हॉर्स बैक, उनकी जो साथ में जो इनकी दासियां हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो भी इनके साथ घोड़ों पे हैं, बैक, ठीक है, बैक पोजीशन में हैं। ओके, द सेंटर बट स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल द पोलो बॉल विद लॉन्ग स्टिक, और ये भी पोलो बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। देयर अपर बॉडी आर ट्विस्टेड बैकवर्ड ट्राइंग टू फेस द बॉल, उनकी जो, ठीक है, जो बॉडी है वो पीछे की तरफ है बॉल को कंट्रोल करने के लिए। हेड्स ऑफ द मेड्स आर कवर्ड विद ओढ़नीज, इन सब के दुपट्टे जो हैं वो सिर के ऊपर है, सिर कवर है। दे आर ड्रेस्ड इन राजपूत कॉस्ट्यूम, सबने राजपूत कॉस्ट्यूम पहना हुआ। दे स्कर्ट्स स्प्रेड आउट इन द बेल शेप लाइक फैशन विद द मूवमेंट ऑफ द हॉर्सेस। अब ध्यान से देखो तो इनके जो नीचे का जो इनका जो लहंगा है
लहंगे का जो बॉटम एरिया है ये इस तरह से राउंड शेप में है, जैसे कि बेल शेप में, क्योंकि घोड़े की भागने की वजह से मूवमेंट। द रिवर्स मूवमेंट ऑफ द मेड्स एंड देयर हॉर्सेस हैज़ लेंट स्पीड टू द मूवमेंट। अब जो इसमें पेंटिंग में घोड़े के ऊपर जो फीमेल्स दिखाई गई हैं वो अपवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन में जो इनके घोड़े और इनकी पोजीशन है, ये भी पेंटिंग की जो क्या बोलते हैं चार्म है उसको चार चांद लगाते हैं। बहुत बेहतरीन कंपोजिशन बनी है इसकी वजह से। दे ऑल हैव देयर हेयर्स टाइड इन टॉप नोट। इन सब ने अपने हेयर्स जो हैं वो सिर के पीछे बांधे हुए हैं। कलर स्कीम, सो स्टूडेंट्स, ब्राइट कलर्स आर यूज्ड बाय द आर्टिस्ट इन द पेंटिंग। इसमें आर्टिस्ट ने ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं। जितने भी ड्रेस कोड आपको दिख रहा है ये सब ब्राइट कलर्स हैं। हॉर्सेस आर शोन इन डिफरेंट कलर्स, जबकि घोड़ों को जो है अलग अलग रंग में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, इन आवर टुडे क्लास वी discussed and completed our 3 paintings. Okay, so total 6 paintings are in syllabus, so in which we have completed the half. So thanks and have a nice day. In our next class we will discuss about our next paintings.